آپ اپنے بچوں کو ریڈی کر رہے ہیں دجال کی فوج میں ہونے کے لیے. ایسا میں نہیں کہہ رہا، آپ ایسا کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنے بچوں کو کچھ ایسے کارٹونز دکھاتے ہیں جس میں ان کو صرف یہی سکھایا جاتا ہے کہ وی آر ویٹنگ دجال. ہمارا خدا نعوذ باللہ شیطان ہے. ان کو صرف یہی ان کارٹونز میں بتایا جاتا ہے. ایون کہ میں بھی کبھی کبھی کارٹونز دیکھ لیتا تھا، لیکن آج جو میں کارٹونز کے کلپس آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد نہ تو میں وہ کارٹون دیکھوں گا اور نہ ہی آپ دیکھیں گے. جی ہاں، ہم ایک کارٹون بہت شوق سے دیکھتے ہیں، ٹام اینڈ جیری. آپ نے بھی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھے ہوں گے. جی ہاں، ٹام اینڈ جیری ایک کارٹون ہے. اس کے ایک ایپیسوڈ میں ہمیں کچھ ایسا سین نظر آتا ہے جس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈیمونک کارٹونز ہیں. یہ ایک ایسے کارٹون ہے جس سے ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے. آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں. اس ویڈیو میں کیا تھا؟ اس ویڈیو میں یہ تھا کہ پریزیڈنٹ کے آفس میں ساری کھڑکیاں دروازے بند کرتے ہیں اور پھر پروجیکٹر پر ایک شیطان آتا ہے. جی آپ کے سامنے ایک شیطان آتا ہے اور دونوں لوگ جا کر پہلے شیطان کو سجدہ کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم مسلم ہیں، ہم صرف اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے. لیکن ہم نے یہ ایپیسوڈ دیکھی ٹام اینڈ جیری کی جبکہ ہم مسلمان تھے. آپ نے دیکھا کہ جیسے شیطان سامنے آیا اس کو دیکھ کر ٹام اور جیری چھپ کر صوفے کے پیچھے چلے گئے. لیکن آپ کا بچہ تب بھی یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی کہ انہوں نے شیطان کے سامنے سجدہ کیا اور یہ زیادہ پاورفل ہو گئی. اس کے بعد آپ کو میں کئی اور کلپ دکھاؤں گا، لیکن اس کے بعد آپ کو یہ ریلائز ہونا چاہیے کہ شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. ہمیں وہ لوگ گمراہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کو فالو کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہمارا ایمان پختہ ہو، اگر ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں گمراہ کرنے کی کس حد تک کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح بن جائے کہ وہ شیطان کی پوجا کر سکے. دوسری طرف آپ میں ایک اور کارٹون کے کلپ دکھاؤں، بلکہ آپ کو ایک فوٹو دکھاؤں جس میں ہم نے دجال کو دیکھا ہوگا. ہمیں پتہ ہے دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور آپ کو اس کارٹون میں بھی ایک آنکھ والا بندہ نظر آئے گا، یعنی ایک کارٹون نظر آئے گا اور اس کے ساتھ جساسا بھی ہوگا. جی ہاں، وہی جساسا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جساسا جس کے جسم پر بال تھے اور وہ دجال کی حفاظت کر رہا تھا. آپ یہ دیکھیں، یہ دجال اور جساسا ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے کہ ایک آنکھ والا بہت کیوٹ سا ایک کارٹون ہے یہ، اور یہی آگے جا کر دجال بن جائے گا. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو بہت کیوٹ ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور دجال آئے گا ہمارے بچے کہیں گے یہ تو بہت کیوٹ ہے. سمجھے آپ؟ ہمیں ایسی چیزیں بنا کر دکھائی جا رہی ہیں جس سے ہم دجال کی راہ ہموار کریں، جس سے ہم یہودیوں کا کام آسان کریں. اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہ کلپ ہے ایک ڈرامے کا جس کا نام تھا سلطان عبدالحمید. مسلمانوں کا ایک ڈرامہ ہے، ترکش ڈرامہ ہے، لیکن اس میں ایک یہودی نے ایسی بات کر دی جو آپ کو سننا ضروری ہے. جس دن اسرائیل وجود میں آئے گا آپ کا شمار ٹھکرائے ہوئے لوگوں میں ہوگا. آپ ابھی تک اسرائیل کے خواب دیکھ رہے ہیں، کہاں بنے گا یہ اسرائیل؟ فلسطین میں، قدس میں. کہاں بھاگے جا رہے ہیں آپ؟ اذان ہو گئی، مسجد جا رہے ہیں. تو پھر بھاگو، جلدی جاؤ. شاباش. ہم اس قوم کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں جہاں بچے تک دین کے پابند ہوں؟ تو کیا وہ اپنے عقائد چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے جناب عمر؟ پہلے ہم سلطان عبدالحمید کو پاؤں کے نیچے لے کر آئیں گے، پھر ذوالفلو کو اس کی جگہ پر لائیں گے، پھر یہ بچے مسجدوں سے غافل ہو جائیں گے. اس میں یہودی یہ کہتا ہے کہ جب مسلمان ہمارے طور طریقے دیکھیں گے تو اپنا اسلام کو بالکل بھول جائیں گے، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے. جی ہاں بالکل، آج یورپین کنٹریز میں ہمارے مسلمان لوگ جاتے ہیں، وہاں جا کر اسلام کو بھول جاتے ہیں. ان کے پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ مسجد کی طرف
रुख भी नहीं करते। आप आज भी अपनी मस्जिद में जाकर देखें कि आपकी मस्जिद में कितने लोग आते हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में कितने ज़्यादा मुसलमान हैं। पूरी दुनिया में 2 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन हमारी मस्जिद में मुश्किल से रोज़ 3 से 4 से 5 मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। ये तो है हमारे ईमान की बात। हमारा ईमान जितना पुख्ता होगा, हम उतना ही यहूदियों से, उतना ही शैतान से बच सकेंगे। शैतान ने तो ये कसम खाई है कि वो मुसलमानों को गुमराह करेगा, और यहूदियों ने भी ये कसम खाई है कि वो अपने मसीहा को इस दुनिया में ला कर रहेंगे, और उनका मसीहा इस दुनिया में ही है जो हमें गुमराह कर रहा है। जी हाँ, दज्जाल के आने की तैयारियां की जा रही हैं, दज्जाल के आने की तैयारियां हो गई हैं, और अब सिर्फ दज्जाल को मंजर आम पर लाने के लिए हमें तैयार किया जा रहा है। हमें ऐसी कार्टून्स, हमें ऐसी मूवीज दिखाई जाती हैं कि जिसमें हम ये अपना माइंडसेट बना लें कि दज्जाल इज नॉट अ प्रॉब्लम, दज्जाल तो एक क्यूट सा कार्टून है और दज्जाल आकर हम पर हुकूमत करेगा। लेकिन यहूदियों का ये सिर्फ एक वहम है। दज्जाल जैसे ही आएगा, मैंने आपको अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया है, उसको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, और इस पूरी दुनिया में इस्लाम होगा। यहूदियों का ख्वाब भी रह जाएगा। इसके बाद आपको एक और मशहूर कार्टून छोटा भीम का तो पता ही होगा। जी हाँ, वही छोटा भीम जो बचपन में हम बड़े शौक से देखते थे। अब भी छोटा भीम बहुत शौक से देखा जाता है। छोटा भीम जो थे उसमें एक विलन था जिसका नाम था किरमाड़ा। वही किरमाड़ा जिसको देखकर आप लोग डर जाते थे। लेकिन आपको एक एपिसोड में, एक मूवी में, इस धूनी बाबा ने ये बताया था कि जो किरमाड़ा है वो कैसे किरमाड़ा बना और कैसे उसने अपनी सोल शैतान को बेची थी। ये पोगो पर लगा था एपिसोड इनकी मूवी, और ये काफी लोगों ने देखी थी। उसमें दिखाया जाता है कि किरमाड़ा शैतान को अपनी सोल बेच देता है और एक शैतान बन जाता है। आप थोड़ा ये क्लिप देख लें। आज मैं अपनी आत्मा हमेशा के लिए तुम्हें उपहार में देता हूँ। ये थी किरमाड़ा की स्टोरी। उसने अपनी सोल बेच दी शैतान को। शैतान को उसने अपनी सोल बेच दी और वो बन गया किरमाड़ा, एक पावरफुल शैतान। फिर आगे स्टोरी का आपको पता ही होगा। तो हमें ये भी इसलिए दिखाया गया, इसलिए बताया गया कि आप लोग शैतान को अपनी सोल बेचो और पावरफुल बन जाओ। और आज के दौर में, आज की हमारी यूथ, हम लोग जब ये देखते हैं कि इल्यूमिनाटी बन जाओ, तुम इल्यूमिनाटी के मेंबर बन जाओ तो तुम्हें पावर मिलेगा, पैसा मिलेगा, यानी सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर बन जाओ तो पावर मिलती है, हमें ऐसा दिखाया जाता है। बहुत से लोग उस तरफ जा भी रहे हैं। वो तो पुरानी एपिसोड थी, पता नहीं 2007-8 में वो मूवी आई थी छोटा भीम की, लेकिन आज भी वही प्रोपेगेंडा है यहूदियों का। उनका ये कहना है कि हम जब भी ऐसी चीजें देखेंगे तो हमारा दिल करेगा कि हम इल्यूमिनाटी की तरफ जाएं, हमें पावर, पैसा मिले। लेकिन हमें चाहिए, हम मुसलमान हैं, हम इसके खिलाफ काम करें। हम सिर्फ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करें और दज्जाल को ख़त्म करने का इंतजार करें। पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करने में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ में। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी कार्टून यानी स्टोरी कार्टून है। मैंने YouTube पे खुद देखी थी ये स्टोरी। इस स्टोरी में कुछ ऐसा था कि एक होती है जादूगर, वो एक लड़की को कहती है कि तुम अपनी सोल मुझे बेच दो, यानी शैतान को बेच दो, तो तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। ये वीडियो मैंने YouTube पर देखी, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी जाकर ना देखिएगा प्लीज। इसके बाद आप देखें वो अपनी सोल बेचते हैं शैतान को और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद एक और लड़की होती है जो अपनी सोल नहीं बेचती और वो गरीब की गरीब ही रह जाती है। आप ये देखें जरा जल्दी। जैसे ही मैं उसके अंदर पहुंची, मैं बेहोश हो गई। तुम मौत के करीब हो। अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे सकती हूँ, लेकिन इसकी कीमत होगी। मुझे बचा लो, प्लीज मेरी मदद करो। जिसने मेरे साथ ये किया है, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, लेकिन याद रखना, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ, बस बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मुझे तुम्हारी रूह चाहिए होगी, और बदले में मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई ड्रेस दूंगी जो तुम्हें नई जिंदगी देगा। ठीक है, मुझे ये मंजूर है।
जब तक ये जादुई ड्रेस तुम्हारे शरीर पर रहेगी तब तक तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी। और याद रखो, देखिए आपने ये वीडियो, इस वीडियो में यही था कि अगर आप शैतान को अपनी सोल बेचोगे खुश रहोगे, और अगर नहीं बेचोगे तो उस लड़की की तरह गरीब रहोगे। इस वीडियो पे अच्छे खासे यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज थे, और मैंने भी बदकिस्मती से ये वीडियो भी देखी थी, कई बच्चे देख रहे थे तो मैंने भी देख ली, और इस पर वीडियो बनाने आपके सामने आ गया। तो आपने देखा कि कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर देख। अगर हम यूट्यूब पर कोई ऐसी बात करें जो वोलेशन में आती है तो वीडियो ब्लॉक कर दी जाती है। ये सबसे बड़ी वोलेशन है, बाकी मैं नहीं जानता। आपको मैंने इतना कुछ बता दिया और आपको समझ अभी भी नहीं आई होगी। आप अभी भी टॉम एंड जेरी देखेंगे, आप अभी भी छोटा भीम देखेंगे, और अभी भी आप वो कार्टून देखेंगे जिसमें दज्जाल और जस्सास आते और ऐसी कहानियां भी देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारा फर्ज है मुसलमान होने के नाते कि हम ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें लाएं जैसे इमरान खान साहब ने किया था। जी इमरान खान ने तुर्की से स्पेशल अर्तुगरुल गाजी ड्रामा लिया था गिफ्ट में कि हमारी यूथ ऐसे ड्रामे देखे जिससे उनको पता चले कि इस्लाम क्या था, और हमने वो देखा भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब कुछ फिर वैसा ही हो गया जैसा पहले था। तो हमें चाहिए कि ऐसे डिमोनिक कार्टून से दूर रहें। हमें चाहिए कि ऐसी वीडियो जिससे हमें ये सब कुछ सीखने को मिलता है। अपने बच्चों को ऐसी वीडियो से, ऐसे कार्टून से दूर रखें, और मुझे भी इजाजत दें। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।